ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇਰੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਸਵੇਰ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸਵੇਰ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ। ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਸੋ ਗਏ, ਸਵੇਰ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਜਗਾਇਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕੇ ਖੁਦਾ। ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਕਈ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਰਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੈਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ। ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਔਰ ਡਿੱਗਣ ਔਰ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਵੀ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ। ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਬਚਾਏ ਗਏ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ, ਔਰ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਤੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਭੂ। ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਸਾਰੇ ਨਬੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੂੰ ਹੀ ਸਾਡਾ ਮਕਾਇਲ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਕਪਤਾਨ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਯੁੱਧ ਦਾ ਕਪਤਾਨ। ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਭਾਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੇਵਨ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਰਾਤ ਫਿਰ ਭਾਈ ਅਜੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਭਾਈ ਅਜੇ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜੋ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੀ ਪੌਲਸ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਔਰ ਤੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜੋ ਪੌਲਸ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਉਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਭੂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੋ ਕੁਝ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ, ਉਹੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਬਾਈਬਲ ਚੁੱਪਾ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਬਾਈਬਲ ਬੋਲਦੇ ਵਚਨ ਬੋਲਦਾ। ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ। ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਛਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨੇੜੇ ਦਾ ਸਾਥ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ। ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ, ਜਿਸ ਨੇ ਰੂਹ ਤੇ ਨੌਮੀ ਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਰੂਤ ਬਵਾਜ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਔਰ ਬਵਾਜ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਬਹਾਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੇਦਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ। ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਸੀਂ ਬੇਦਾਰੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਏ ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰਭੂ। ਜਦ ਤੱਕ ਪਿਤਾ ਨਾ ਖਿੱਚੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਤਮਾ ਵਚਨ ਕੋਲ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ। ਸਭ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰੀਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ। ਦਿਲੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਆਈਏ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਦੇਈਏ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰੀਏ। ਆਪਣੇ ਮੂੰਹਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਮੂੰਹ ਅੱਡ ਕੇ ਪੁਕਾਰ ਸਰਪਾ ਨਾ ਕਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ। ਕੌਣ ਬਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਸਭ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਮਹਿਮਾ ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤੂੰ ਆਤਮਾ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਿਹਾ। ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਪ੍ਰਭੂ। ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ। ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅਸੀਂ ਅਧੂਰੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ। ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋ। ਤੂੰ ਸਤੁਤੀ ਸੀ ਰਾਜਮਾਨ ਦੂਤਾਂ ਦੀ ਸੁੱਤੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਪ੍ਰਭੂ। ਦੂਤਾਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰਭੂ। ਤੂੰ ਜਗਤ ਦਾ ਚਾਨਣ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜੋਤੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ। ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਕਬੂਤਰ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਕਬੂਤਰੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ। ਓ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਮਹਾਨ ਉਕਾਬ ਆਮੇਨ। ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਉਕਾਬ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਰਾਜੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ। ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪ੍ਰਭੂਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਭੂ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਦਮ ਦੇ ਪਸਲ ਲੈ ਕੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਰੀ ਬਣਾਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਮਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਸ ਮੇਰੀ ਹੱਡੀ ਚੋਂ ਹੱਡੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਲਵਰੀ ਕਰੂਸ ਉੱਤੇ ਤੇਰੀ ਬੱਖੀ ਦੀ ਨੇਜਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਉਤੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ। ਜਿੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਿਆ, ਲਹੂ ਨਿਕਲਿਆ, ਆਤਮਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਲਾੜੀ ਆ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੇਰੀ ਪਤਨੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ। ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਚੋਂ ਵਚਨ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੀ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚੋਂ ਆਤਮਾ ਤੇਰੇ ਥਿਉ ਵਿੱਚੋਂ ਥਿਉ ਬੈਨੇ ਹਾਂ ਔਰ ਨੱਚਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ।
तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र करते हैं खुदावन। प्रभु यीशु मसीह मेरे प्यारे भाई खुदावन अजय दास ਨੂੰ भी इस्तेमाल करना खुदावन। जब 2 मीटिंग चलाउणगे प्रभु यीशु मसीह कृपा देना प्रभु। भाई प्रकाश सेवक ਨੂੰ बरकत देना प्रभु। आए सब भाइयों ਨੂੰ बरकत दे प्रभु। जो खुदा दिल्ली तो प्रभु पंजाब तो चल के आए हैं खुदावन। प्रभु यीशु मसीह तेरा आत्मा का काम है प्रभु। तेरा काम आज बड़ा युद्ध जीतने लिए आए हां प्रभु। ਅਸੀਂ तेरे नाम की फतेह करते हुए आए हां। साडी फतेह करके जाइए प्रभु। इस इलाके च प्रभु जिन्हें तेरे रूहां प्रभु शिमले ਦੇ ਵਿੱਚ प्रभु जोलो ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪਾਸੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਲਿਆ ਪ੍ਰਭु ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਮ ਛਡਾਉਣੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਜੋ ਅੰਧਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ, ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਝਗੜੇ ਹੋਏ ਆ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੂੰ ਛਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। Yes, Lord. प्रभु यीशु मसीह तेरा धन्यवाद। नबी ने जब शायद कुछ छोटा दाऊद चाहिदा है जो रिश दे मुंह चों अपने पेट ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਸਕੇ, शेर दे मुंह चों अपने लेला ਨੂੰ ਛੁਡਾ सके। ओ खुदावन तेरा धन्यवाद करते हैं। आज गोलियत गिराया जाए फिर Yes, Lord. तेरा नाम मुबारक हो खुदावन। तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ अपने बच्चों को बड़ी बरकत दे प्रभु। सारे समय ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ जैसे गा के तेरी महिमा तेरी विदाई करना चाहते हैं। Yes, Lord. प्रभु यीशु तेरा नाम मुबारक। सारी महिमा तेरे नाम में। बेनती प्रार्थना ਨੂੰ सुन कबूल कर यीशु मसीह ਦੇ नाम। Amen. आमीन हालेलुया। उसका नाम मुबारक हो। और मैं एक आयत पढ़ के भाई जात ਵਿੱਚ सुनना। आज पढ़ांगे भजन संहिता Sister, थोड़ा सा जगह दे दीजिए प्लीज। पहली है ਇਹ ਸਭ ਲੋਕੋ ਤਾਲੀਆਂ ਵਜਾਓ Yes. ਜੈ Amen. ਜੈਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਲਈ ਲਲਕਾਰੋ। आमीन। Yes, Lord. Hallelujah. सब लोग सब Amen. प्रभु की तारीफ करने पड़े Amen. क्योंकि सब ਨੂੰ प्रभु ने बनाया है। आमीन। वो साਡਾ रचनहारा है। Yes. हालेलुया। Amen. इस करके नहीं कि पास्टर ही प्रभु की महिमा करेगा, भाई प्रकाश सेवक प्रभु की महिमा करनगे, भाई अजय दास प्रभु की महिमा करनगे, ਜਾਂ ਅਸੀਂ सब भाई सब ਨੂੰ करना पड़ेगा। Amen. सब ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। सब ने रैप्चर ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ सब ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨੀ। ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਤਾਰੀਫ, ਉਸ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਅਜੇ ਦਾਸ ਜੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਗॉड ब्लेस सबको प्रेज द लॉर्ड। आमीन। आमीन। मुबारक हो। हालेलुया। किसी की कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है? जरूरी प्रेयर। क्या कोई अपने हृदय में कोई प्रार्थना लेकर आया है? आमीन। अगर है तो अपना हाथ ऊपर उठाए। पहले प्रार्थना करूंगा आमीन हम सबके लिए। और आपकी किसी की कोई भी अगर मुराद है, कोई भी इच्छा है, लेकिन वचन के अनुसार होनी चाहिए। क्योंकि बाइबल में लिखा है जब हम उसके वचन के अनुसार उससे मांगते हैं तो हमारी सुनता है और वो हमें देता है। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। एक और प्रभु यीशु मसीह, मैंने भी अपने हाथ को उठाया है खुदा, Yes, Lord. और आपके बच्चों ने आपकी ओर अपने हाथों को उठाया है। Amen. और जब ये अपने हाथों को उठाए हुए हैं तो गुरुत्वाकर्षण की शक्ति का इनकार कर रहे हैं प्रभु जी। Yes, Lord. हाथ को उठा के दिखा रहे हैं खुदावन कि प्रभु ये आपकी ओर हैं प्रभु जी। Yes, Lord. और इनके हाथ के नीचे एक छोटा हृदय है जिसमें कुछ वो आपसे मांग रहे हैं प्रभु। हो सकता है वो हीलिंग हो खुदावन, हो सकता है कोई छुटकारा हो प्रभु, हो सकता है कोई आपके पवित्र आत्मा का भूखा और प्यासा है। ओ खुदावन, मैं नहीं जानता प्रभु इनकी क्या मुराद है, इनकी क्या इच्छा है, लेकिन मैं विनती करता हूँ खुदावन आप एक एक के हाथ को देखें प्रभु। Yes, Lord. और हाथ के नीचे जो उनके डिज़ायर है उसको देखें खुदावन, उस हृदय की प्रभु जी, और आप उसे प्रदान करें। क्योंकि आप जानते, हम जानते हैं खुदावन आप हमारे जीवित खुदा हैं। Amen. हमारे चंगा करने वाले, Yes, हमारे Lord. उद्धार करता है, हमारे छुड़ाने वाले हैं आप प्रभु। Amen. वो आप रिडीमर है खुदा। Yes, Lord. ओ ये आपके महान गुण थे प्रभु जिन्हें आप रिवील करना चाहते थे, जिन्हें आप प्रकट करना चाहते थे। और वास्तविकता में खुदावन हम वो लोग हैं खुदावन जिन्हें आपके इन गुणों की आवश्यकता है। Amen. हम नीडफुल लोग हैं खुदावन, Yes, Lord. हमें आपकी ज़रूरत है प्रभु। Amen. प्लीज लॉर्ड आप हमारे जीवन में आइए खुदा। जिन्हें छुटकारे की ज़रूरत है आप उन्हें छुटकारा दीजिए खुदा। जिन्हें चंगाई की ज़रूरत है आप उन्हें चंगाई दीजिए खुदा। Yes, Lord. हो सकता है किसी में अज्ञानता का पर्दा हो खुदा, ओ हमें अपनी समझ और बुद्धि का वरदान दीजिए Yes, खुदा। Lord.
मसीह, आप जानते हैं हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। Yes, यहाँ Lord. तक कि हम खुद भी नहीं जानते हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। राइटली खुदावन, तो प्रभु आप अपनी सिद्ध मर्जी के अनुसार, अपने वचन के अनुसार आप हमारी ज़रूरत को पूरा करें Amen. और आप हमारे जीवन में अपना फ्रेश एक्सपीरियंस दें खुदावन। Yes, Lord. हम में से हर एक के हृदय से आप बातचीत करें प्रभु, Amen. और ऐसे बात करें जैसे आज से पहले आपने कभी ना की हो। Amen. तो प्रभु हम आपके संपर्क में आ सके Yes, Lord. खुदावन, हम आपके प्रभु जी मौजूदगी में आ सके खुदावन। Amen. हमारा प्राण, हमारा मन, हमारा हृदय जान सके कि एक खुदा है जो जीवित है प्रभु, Amen. वो आप हैं खुदावन। Yes, आपकी Lord. मौजूदगी में सब कुछ हो सकता है खुदावन। Amen. कोई भी ऐसी Thank बात you, हो जो Jesus. आप करना सकते हो खुदावन। Yes, Lord. विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। Amen. ओ खुदावन, हम आप पे विश्वास करना चाहते हैं खुदावन। Amen. आपके पास आना चाहते हैं खुदावन। Amen. लेकिन आपने कहा कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता ही ना चाहे। Yes, Lord. ओ पिताजी, आप हमें खींचिए अपनी ओर। Yes, Lord. और Amen. मैं विश्वास करता हूँ आपने हमें खींचा है खुदावन। यही कारण है आज सुबह हम यहाँ बैठे हुए हैं खुदावन, आपकी मौजूदगी में बैठे हुए हैं। ये बच्चे आपका वचन सुनने आए हैं खुदावन, ये आपके चुने हुए बीज हैं प्रभु यीशु मसीह, इन्हें आपने खींचा है अपनी तरफ खुदावन। Yes, अब मेरी प्रार्थना है खुदावन, आप अपना आत्मा बल से उतारिए प्रभु यीशु मसीह, इनके हृदय से आप बातचीत कीजिए खुदावन। अपने वचन को इनके ऊपर खोलिए प्रभु, अपने भेदों को इनके ऊपर उजागर कीजिए खुदावन, इनकी समझ खुल जाए प्रभु यीशु मसीह, और सारे वो शैतान के बंधन जो इनके जीवन में पाए जाते हैं वो टूट जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। सारे जुए टूट जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में, और ये प्राण आपके राज के लिए जीते जाए खुदावन। ओ आप जानते हैं आपका बीज कौन है खुदावन, आपने बीज पे आप रोशनी चमकाइए प्रभु यीशु मसीह, आपका नाम मुबारक हो। मैं विश्वास करता हूँ आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया Amen. और आप ऑलरेडी यहाँ मौजूद हैं खुदा, Amen. क्योंकि आपने वायदा किया है जहाँ कहीं मेरे नाम से 2 या 3 इकट्ठे होते हैं उनके बीच में मैं हाजिर होता हूँ। ओ हम आपका वेलकम करते हैं, आपका धन्यवाद देते हैं खुदावन, आपके नाम को मुबारक कहते हैं प्रभु यीशु मसीह, आपके आगे झुकते हैं खुदावन। आप इस सारे आदर और महिमा के योग्य हैं प्रभु यीशु मसीह। आप हमारे राजा हैं, आप हमारे दूल्हा हैं, आप हमारा सब कुछ है, आप हमारा जीवन है खुदावन। Amen. ओ आप धार्मिकता है खुदावन, आपका नाम मुबारक हो, आपके नाम में मैं जय जयकार। अपने आप को हम सब आपके हाथों में सौंपते हुए इस छोटी सी विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। Amen. आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आमेन। आमीन। सब खुदा के नहीं होते। मैं रात को एक पॉइंट शेयर कर रहा था। आमीन। आमीन। सब खुदा के नहीं है, बोलो। लेकिन जो खुदा के हैं खुदा ने उन्हें खींच रहा है अपनी तरफ, आमीन। क्योंकि समय अब बचा नहीं, समय बहुत ज्यादा नहीं है, समय थोड़ा सा है और काम ज्यादा है, इसलिए खुदा भी बहुत तेजी से काम कर रहा है। हालेलुया। हालेलुया। 2001 में जब हम लोग हमारे पास मैसेज पहुंचा तो काफी बोलो टाइम इधर लगा हमें मैसेज बोलो। समझने में, बोलो। बातें समझ में नहीं आई इतनी जल्दी, लेकिन चूंकि खुदा का बीज था अच्छा बेटा, आगे। आगे बैठो बेटा. तो खुदा ने हमें पकड़ा। आमीन। आगे। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ जहाँ खुदा के बीज है भैया 1-2 मीटिंग में काम हो जाता है, खुदा पकड़ लेता है उन्हें। आमीन। सो कुछ अंदर वाले होते हैं, इस गाने को गाएंगे 315। कुछ अंदर वाले होते हैं, कुछ बाहर वाले होते हैं, और एक कहाँ लिखा है, मत्ती 13 में लिखा है। अगर कोई पढ़ना चाहे 1 मिनट के लिए पढ़ दे, 1 मिनट के लिए जल्दी से। मत्ती 13 अध्याय 10 आयत से। मैं टाइम का ख्याल रखूंगा। भविष्यवक्ता का आत्मा उसके वश में है, लेकिन भविष्यवक्ता पवित्र आत्मा के वश में है। ध्यान रखना, नहीं तो कभी नहीं कहेगा कुआरी गर्भवती हो गई, मुंह बंद रखेगा हमेशा वो। जी। चेलों ने पास आकर उससे कहा, तू लोगों से दृष्टांतों में क्यों बातें करता है? उसने उत्तर दिया, तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है। तो प्रभु यीशु मसीह कैसे बातचीत करते थे अपने लोगों से? दृष्टांतों के द्वारा। जैसे भैया ने एक दृष्टांत दिया था ग्लास का, मुर्गी के दड़ में। वो कौन सी भाषा है? वो दृष्टांतों की भाषा। वहाँ कोई असली ग्लास की बात नहीं हो रही है, वो ग्लास में और आप हैं। सारे दृष्टांत किससे बातें कर रहे हैं? मुझसे और आपसे बातें कर रहे हैं। और पूरी बाइबल दृष्टांतों में लिखी गई है, क्योंकि जो कुछ यीशु मसीह बोलते थे बगैर दृष्टांत कुछ भी नहीं बोलते थे। आगे लिखा है। आमीन। तो यहाँ तक कि पूरी बाइबल उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक कैसे लिखी गई है? दृष्टांतों में लिखी गई है, चिन्हों की भाषा में, पैराबल्स में। और यहाँ चेले पूछ रहे हैं प्रभु से, आप दृष्टांतों में बातें क्यों करते हैं? उसने तो 1 मिनट मैं तो ये कहता ताकि सब समझ जाएं। प्रचारक
Amen. एग्जाम्पल्स लेता है, उदाहरण लेता है, यानी क्या क्या इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से कि किसी तरीके से लोगों की बातें समझ में आ जाए, Amen. है ना। लेकिन आइए देखें हमारे प्रभु का क्या जवाब है। पढ़िए। उसने उत्तर दिया, तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है, तुम्हें तो स्वर्ग के राज के भेदों की समझ दी गई है, पर उनको नहीं। पर उनको नहीं। सही है। हैं? फिर से दो ग्रुप आ गए यहाँ पर, फिर से दो कैटेगरी के लोग आ गए यहाँ पर। सही है। आप लोग हैं मेरे साथ? कोई बात नहीं, छोटी छोटी उठक पटक चलती रहेगी। आप अपना मन वचन की तरफ लगा के रखिए। आमीन। आमीन। तो चेले पूछ रहे हैं, प्रभु आप दृष्टांतों में बातें क्यों करते हैं? तो पहला तो आंसर खुदा ने ये दिया, तुम्हें तो भेदों की समझ। इसका मतलब है दृष्टांत केवल दृष्टांत नहीं है, दृष्टांत में एक भेद है। क्या है? भेद, मिस्ट्री। और खुदावन कह रहे हैं अपने चेलों से, तुम्हें उस भेद की समझ दी गई है लेकिन उनको नहीं। इसका मतलब है कुछ हैं जिन्हें समझ दी गई है और कुछ हैं जिन्हें समझ नहीं। तो चेले कह सकते, प्रभु अगर हमें समझ दी गई होती तो हम तो समझ जाते, हमारे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप क्या कह रहे हैं? सुनिए जरा ध्यान से, पढ़िए। क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा। पर क्या है और क्या दिया जाएगा? जिसको समझ ऑलरेडी दी गई है। Amen. कब दी? कहाँ दी? जगत की उत्पत्ति से पहले दी। Amen. क्योंकि बिफोर द फाउंडेशन ऑफ द वर्ल्ड, जगत की उत्पत्ति से पहले खुदा ने आपको चुना। आमीन। मसीह में आपने खुदा को चुना या खुदा ने आपको चुना? खुदा ने हमें चुना। है नहीं? हमने खुदा को नहीं चुना। मैं मीटिंग में जा रही हूँ, सुन लेती हूँ यीशु मसीह के बारे में, चलो ग्रहण कर ही लेती हूँ यीशु मसीह को। जी नहीं, ये आप नहीं कर रहे, हाँ, सही बात है। ये वो कर चुका है आपके साथ पहले ही। Yes, आमीन। हे बाप, जितने तूने मुझे दिए मैंने एक को भी नहीं खोया। Yes. तो जो बाप ने दिए हैं पिता यीशु मसीह को, कब? बिफोर द फाउंडेशन ऑफ द वर्ल्ड मसीह में चुना, वही मसीह के पास आ जाते हैं, वही मसीह को ग्रहण करते हैं जो मसीह में चुने हुए हैं। हालेलुया। और वो समझ आप में पहले से ही रखी हुई है। आमीन। कैसे प्रूव होता है? जब बात समझाई जाती है तो बात समझ में आ जाती है। आप लोग हैं मेरे साथ? जब बात समझाई जाती है तो बात समझ में किसके? जिसे समझ दी गई है। और जिसे समझ दी ही नहीं गई है, भैया रात को समझाओ, फिर दिन को समझाओ, फिर अगले दिन को समझाओ, फिर अगली रात को समझाओ, फोड़ते रहो अपना सर, उसके कुछ समझ में नहीं आया। क्यों? समझा तो इसे भी रहे, है नहीं? एक को समझाते रहो, उसके समझ में आएगी नहीं। एक को 2-4 मीटिंग में समझाओ, उसके बाद समझ में आ जाती है। Hallelujah. क्यों? क्योंकि उसे समझ दी गई है। Amen. आमीन। तो जिसे समझ दी गई है, जब उसको समझाया जाता है उसके समझ में आ जाता है। और जिसे समझ नहीं दी गई है, उसे कितनी मीटिंग कर लो उसके साथ, उसको समझ में नहीं आता। है। ये आंसर नहीं है, लेकिन सवाल क्या था चेलों का? आप दृष्टांतों में बातें क्यों करते हैं? पढ़िए जल्दी से। क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा। हाँ। पर जिसके पास कुछ नहीं है, उससे जो कुछ उसके पास है वह भी ले लिया जाएगा। क्या समझ तो है ही नहीं, कॉमन सेंस था वो भी ले लिया गया। जी। इसलिए आज लोग कैसे हो गए? पागल हो गए। जब कॉमन सेंस इंसान में से खत्म हो जाए तो इंसान क्या हो जाता है? जी। पागलपन की हालत में हो जाता है। खैर, मैं प्रचार नहीं करना चाहता, जल्दी से पढ़िए। मैं उनसे दृष्टांतों में इसलिए बातें करता हूँ। मैं आइए आया आंसर। चेलों ने पूछा, आप दृष्टांतों में बातें क्यों करते हैं? तो एक प्रचारक होने के नाते हम क्या बोलते हैं? ताकि सब समझ जाएं। लेकिन प्रभु क्या कह रहे हैं? मैं उनसे दृष्टांतों में इसलिए बातें करता हूँ कि वे देखते हुए नहीं देखते, देखते हुए भी देखें और उन्हें दिखाई ना दे। जी, नहीं देखते, और हाँ। सुनते हुए नहीं सुनते हम्म। और नहीं समझते। हाँ उनके विषय में जैसा कि यह भविष्यवाणी पूरी होती है, हाँ। तुम कानों से तो सुनोगे पर समझोगे नहीं, और आंखों से तो देखोगे पर तुम्हें सूझेगा नहीं, पर सुझाई नहीं तुम्हें देगा, ना नहीं समझ सूझेगा। में। कहने का मतलब ये है, प्रभु दृष्टांतों में बातें क्यों कर रहे हैं? देखते हुए भी देखे, उन्हें दिखाई, और सुनते हुए भी सुने और ना समझे। जी।
इसका मतलब है प्रभु दृष्टांतों में इसलिए बातें कर रहे हैं कि सब ना समझें। अजीब है, बड़ी अजीब बात है। प्रभु सबको समझाना नहीं चाहते, इसलिए मत्ती 11:25-26 में लिखा है, हे प्रभु स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ, तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा लिया। तुम्हें तो स्वर्ग के राज के भेदों की समझ दी गई है, लेकिन उनको नहीं, उनसे छिपा लिया है उसने, लेकिन तुम्हें दी गई है, यानी ज्ञानियों और समझदारों से छिपा लिया है और बालकों पे प्रकट किया है। मैं विश्वास करता हूँ आज कुछ बालक यहाँ बैठे हैं और आज वो फिर से आएगा और कुछ समझाएगा। क्या भेद, स्वर्ग और खुदा के राज के भेदों की समझ तुम्हें दी गई है, तो उन दृष्टांतों में भेद हैं। हालेलुया। और जब वो आज फिर से भेदों की समझ आपको देगा, और जो चुना हुआ कोई बीज यहाँ बैठा हुआ है, अनंत जीवन के लिए ठहराया हुआ, जगत की उत्पत्ति से पहले चुना हुआ अनंत जीवन के लिए, उसके बाद समझ में आ जाएगी। लेकिन जो चुने हुए नहीं है वे बाहर वाले हैं। तो कुछ अंदर वाले हैं, कुछ बाहर वाले हैं। हालेलुया। क्या हम गा सकते हैं इस गाने को? थैंक यू लॉर्ड। कुछ अंदर वाले होते हैं, कुछ बाहर वाले होते हैं। अंदर वाले हंसते हैं, बाहर वाले रोते हैं। कुछ अंदर वाले होते हैं, कुछ बाहर वाले होते हैं। अंदर वाले हंसते हैं, बाहर वाले होते हैं। कुछ अंदर वाले, कुछ बाहर वाले, कुछ बाहर वाले। तमसीलों में बात मसीह की सारी भीड़ सुने, मसीह ने चुने एक एक कर ये भीड़ में एक एक कर यीशु ने तो कह दी सारी बात। भीड़ में सारी बात सुनी, मतलब मेरा क्या, मतलब यीशु ही बताए। अपनों को तो वो समझाए, मतलब यीशु ही बताए। अपनों को तो वो समझाए। समझदार तो समझे ना, पर वो जो बालक होते, कुछ अंदर वाले होते, कुछ बाहर वाले होते। अंदर वाले होते हैं, कुछ बाहर वाले होते। कुछ अंदर वाले होते, कुछ बाहर वाले होते। कुछ बाहर वाले। चार तरह की भूमि को एक ही बीज मिले, केवल अच्छी भूमि फलती बाकी ना फले। चार तरह की भूमि को एक ही बीज मिले, केवल अच्छी भूमि फलती बाकी ना फले। बीज खुदा का है वचन और भूमि है इंसान, वचन को सुनकर पूरा करना जीवन की पहचान। बीज खुदा का है वचन और भूमि है इंसान, वचन को सुनकर पूरा करना दुल्हन की पहचान। खुले वचन से ज्योति आए, अंधकार को दूर भगाए। खुले वचन से ज्योति आए, अंधकार को दूर भगाए। अचरज की कोई बात नहीं, रोज अधूरे होते। कुछ अंदर वाले होते, कुछ बाहर वाले होते। अंदर वाले होते, कुछ बाहर वाले होते। कुछ अंदर वाले होते, कुछ बाहर वाले होते। कुछ बाहर वाले
युगों युगों से भेद छुपे जो खोले आज खुदा, नबी के द्वारा बात करूंगा ऐसा खुदा ने कहा। युगों युगों से भेद छुपे जो खोले आज खुदा, नबी के द्वारा बात करूंगा ऐसा खुदा ने कहा। नबी की बोली सुन सके जो दिया खुदा ने कान, सादगी में छिपा खुदा और दुनिया है अनजान। नबी की बोली सुन सके जो दिए खुदा ने कान, सादगी में छिपा खुदा और दुनिया है अनजान। अंदर वाले ज्योति पाए, बाहर वाले ठोकर खाए। अंदर वाले ज्योति पाए, बाहर वाले ठोकर खाए। कहाँ कहाँ से खुदा ने ढूंढा जो खुदा के होते, कुछ अंदर वाले कुछ बाहर वाले होते, अंदर वाले होते बाहर वाले होते, कुछ अंदर वाले होते कुछ बाहर वाले होते, अंदर वाले होते बाहर वाले होते, कुछ अंदर वाले कुछ बाहर वाले। हालेलुया। तो कुछ अंदर वाले हैं कुछ बाहर वाले हैं। खुदा का धन्यवाद हो। मैं और आप कौन है? अंदर वाले। आमीन। तो इस कमरे के नीचे वो आके अपने भेदों का उच्चारण कर रहा है, अपने भेदों को अपने बच्चों पे रिवील कर रहा है। क्योंकि जब उन्हें दृष्टांत में बातें समझ में नहीं आती थी तो आगे ये भी लिखा है वो अकेले में पूछते थे। भीड़ में तो आपने बता दिया जी, और भीड़ को कुछ पल्ले नहीं पड़ा जी, आप हमें तो बता दो जी। आमीन। और तब वो उन्हें दृष्टांत के भेदों की समझ उन्हें बताता था। हालेलुया। और आज वो फिर से आएगा, फिर से कुछ लेगा। आमीन। वो भेद जो जगत की उत्पत्ति से पहले छिपे हुए हैं, हालेलुया, जो मेरे और आपकी जिंदगी से जुड़े हुए हैं। ध्यान रखना, इस बाइबल से आप जुड़े हुए हो। अगर आपका नाम इस बाइबल में है, आपका नाम इस जीवन की पुस्तक में है, वरन मेमने की जीवन की पुस्तक कुछ और नहीं, बाइबल है। आमीन। और आपका नाम इसके अंदर पाया जाता है। सो गॉड ब्लेस यू। खुदा का नाम मुबारक हो। मैं